Hello everyone. Today we will study in this video our second part of chapter history chapter 11 of class 8. Chapter is the making of the national movement 1870s to 1947, and in this chapter first part we read topic about the emergence of nationalism. And today in this video second part of this chapter we will study topic about the growth of mass nationalism. And this topic under this topic we will study some topic is uh, such are the evident of Mahatma Gandhi, and second the Rowlatt Satyagraha, third Khilafat agitation and the non-cooperation movement, and fourth People's initiatives, fifth the People's Mahatma, and sixth the happening of 1922 to 1929. So let's start this video of second part, the making of the national movement 1870s to 1947, with the topic of the growth of mass nationalism, means जन राष्ट्रवाद का उदय. द ग्रोथ ऑफ मास नेशनलिज्म का मतलब होता है जन राष्ट्रवाद का उदय. आफ्टर 1919 the struggle against the British rule started becoming a mass movement which involved peasants, tribes, students, and women as well. Some businesses groups also began to support the Congress in the 1920s. 1919 के बाद अंग्रेजों के खिलाफ चल रहा जो संघर्ष था धीरे धीरे एक जन आंदोलन में तब्दील होने लगा. जो पीसेंट्स थे मीन्स किसान, जो ट्राइब्स थे मीन्स आदिवासी, और स्टूडेंट्स एंड वुमेन्स, ये बड़ी संख्या में इस आंदोलन से जुड़ते गए. और कई बार औद्योगिक मजदूरों ने भी आंदोलन में योगदान दिया. और 20 के दशक से कुछ खास व्यावसायिक समूह भी कांग्रेस को सक्रिय समर्थन देने लगे. ऐसा क्यों हुआ? ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वार इंडिया फेस्ड लार्ज डिफिकल्टीज due to military expenses. This means that the expenditure was very huge, and to bear that government started extracting huge amount of tax from the local people. The rise in the prices of commodities was creating difficulty for the common people. On the other hand, as we read in chapter 7, businesses houses were gaining a lot from the war. The war created a huge demand for industrial goods such as jute bags, cloth, rails, etc., and caused a decline in imports. Indian industries expanded to a great extent during the war. फर्स्ट वर्ल्ड वार के समय भारत की जो आर्थिक और राजनीतिक स्थिति थी उसने फर्स्ट वर्ल्ड वार को बदल दिया. और इस युद्ध की वजह से ब्रिटिश भारत सरकार के रक्षा व्यय में जो भारी इजाफा हुआ. और इस खर्चे को निकालने के लिए सरकार ने निजी आय और व्यावसायिक मुनाफे पर टैक्स को बढ़ा दिया. और सैनिक व्यय में इजाफे तथा युद्धक आपूर्ति की वजह से जरूरी कीमतों की चीज़ों में बहुत ज़्यादा भारी उछाल आया, और आम लोगों की ज़िंदगी जो थी वो बहुत ही मुश्किल होती गई. दूसरी ओर व्यावसायिक समूह युद्ध से बेहिसाब मुनाफा कमा रहे थे. जैसा कि हम चैप्टर 7 में देख चुके हैं, स्टडी कर चुके हैं. जो बिजनेसेस हाउसेस थे, औद्योगिक वस्तुएं जैसे जूट वगैरह जो थे, जूट के बोरे, कपड़े, पटरियाँ, ये सब जो थे इनकी मांग बढ़ा दी थी. और अन्य देशों से भारत आने वाला
आयात में कमी ला दी थी। इस तरह युद्ध के दौरान भारतीय उद्योगों का विस्तार हुआ और भारतीय व्यावसायिक समूह विकास के लिए और अधिक अवसरों की मांग करने लगे। The war also resulted in the expansion of the British Army. Many villagers were sent abroad to serve as British soldiers. Many returned after the war with an understanding that how these imperialist powers had colonized Asia and Africa for their own benefits, and how these powers were exploiting the people of both continents. This led to the development of a desire to oppose British rule in India. युद्ध ने अंग्रेजों को अपनी सेना बढ़ाने के लिए विवश कर दिया था और एक विदेशी युद्ध की खातिर गांवों में सिपाहियों की भर्ती के लिए दबाव डाला जाने लगा और बहुत सारे सिपाहियों को दूसरे देशों में युद्ध के मोर्चों पर भेज दिया गया। इनसे बहुत सारे सिपाही युद्ध के बाद यह समझदारी लेकर लौटे कि साम्राज्यवादी शक्तियां एशिया और अफ्रीका के लोगों का किस तरह शोषण कर रही हैं। इसका रिजल्ट ये हुआ कि ये लोग भी भारत में औपनिवेशिक शासन का विरोध करने लगे। In 1970, the revolution took place in Russia, in which peasants and workers struggled for their rights. This inspired the Indian nationalists as the idea of socialism circulated widely. इसके अलावा 1970 में रूस की क्रांति हुई और इस घटना के चलते किसानों और मजदूरों के संघर्षों का समाचार तथा समाजवादी विचार बड़े पैमाने पर फैलने लगा, जिससे भारतीय राष्ट्रवादियों को नई प्रेरणा मिलने लगी। नाउ दैट वी नो अबाउट द सिचुएशन ड्यूरिंग एंड आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वार, वी विल नाउ डिस्कस अबाउट महात्मा गांधी। द एविडेंट ऑफ महात्मा गांधी मीन्स महात्मा गांधी का आगमन। इन 1915 Gandhi came to India from South Africa at the age of 46. Till now, he had earned a name as a leader on an international level. This was so because he had led many campaigns in South Africa against racism. This brought him in contact with many types of Indians such as Hindus, Muslims, Parsis and Christians, Gujaratis, Tamils, North Indians and upper caste, merchants, lawyers and workers. जो 1915 में गांधी जी एक ये जो हालात चल रहा था उसमें महात्मा गांधी एक जन नेता के रूप में सामने आए, जो कि गांधी जी 46 वर्ष की उम्र में 1915 में दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे और वे वहाँ पर जो नस्ल भेदी पाबंदियों के खिलाफ अहिंसक आंदोलन चला रहे थे और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस वजह से उनकी अच्छी मान्यता थी और लोग उनका आदर करते थे। दक्षिण अफ्रीकी आंदोलन की वजह से उन्हें हिंदू, मुसलमान, पारसी और ईसाई, गुजराती, तमिल और उत्तर भारतीय उच्च वर्गीय व्यापारी, वकील और मजदूर सब तरह के भारतीयों से मिलने जुलने का मौका मिल चुका था। In his first year, Mahatma Gandhi traveled through whole of India to understand the overall need and situation of the people. Initially, he led some local movements in Champaran, Kheda and Ahmedabad, where he came in contact with Vallabhbhai Patel and Rajendra Prasad. In 1918, he led a successful mill workers स्ट्राइक इन अहमदाबाद। महात्मा गांधी ने पहले साल पूरे भारत का दौरा किया, वहाँ भारत में घूमा। इस दौरान वे यहाँ के लोगों, उनकी ज़रूरतों और हालात को समझने में लगे रहे।
उनके शुरुआती प्रयास जो थे वो चंपारण, खेड़ा और अहमदाबाद के स्थानीय आंदोलन के रूप में सामने आए। इन आंदोलनों के माध्यम से उनका राजेंद्र प्रसाद वल्लभ भाई पटेल से परिचय हुआ और 1918 में अहमदाबाद में उन्होंने मिल मजदूरों की हड़ताल का सफलतापूर्वक नेतृत्व किया। लेट्स नाउ हैव अ लुक एट द मूवमेंट्स ऑर्गेनाइज्ड बिटवीन द ईयर 1919 टू 1922। आइए हम 1919 से 1922 के बीच के आंदोलन को कुछ गहराई से देखें। द रॉलेट सत्याग्रह मीन्स रॉलेट सत्याग्रह को आगे हम स्टडी करेंगे। इन 1919 द रॉलेट एक्ट वॉज पास्ड बाय द गवर्नमेंट विच पुट restriction on the fundamental rights of freedom of expression. It also strengthened the police power. Mahatma Gandhi, Muhammad Ali Jinnah and others felt that the government had taken away the basic right of the people. जो 1919 में गांधी ने अंग्रेजों के द्वारा हाल ही में पारित किए गए रॉलेट एक्ट के खिलाफ सत्याग्रह का आह्वान किया। यह जो कानून था इससे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जैसे मूलभूत अधिकारों पर अंकुश लगाने और पुलिस को और ज़्यादा अधिकार देने के लिए लागू किया गया था। महात्मा गांधी, मोहम्मद अली जिन्ना और अन्य नेताओं का मानना था कि सरकार के पास लोगों की कुछ बुनियादी स्वतंत्रताओं पर अंकुश लगाने का कोई अधिकार नहीं है। उन्होंने इस कानून को शैतान की करतूत या निरंकुशवादी बताया, जिसे रॉलेट सत्याग्रह भी कहा जाता है। Hence, Gandhiji asked people to observe 6th April 1919 as a day of non-violent opposition to this act. Satyagraha sabhas were set up to launch the movement. Hurtals were done against the act. As Rowlatt Satyagraha turned out to be an all-India struggle, Britishers then took brutal steps to curb this down. One such was the Jallianwala Bagh massacre, which took place on 13th April 1919 on Baisakhi Day, when General Dyer ordered mass killing of the people who had gathered in the Bagh to protest peacefully. गांधी जी ने लोगों से आह्वान किया कि इस कानून का विरोध करने के लिए 6 अप्रैल 1919 को अहिंसक विरोध दिवस के रूप में अपमान व याचना दिवस के रूप में मनाया जाए और हड़ताल की जाए। और आंदोलन शुरू करने के लिए सत्याग्रह सभाओं का भी गठन किया गया। रॉलेट सत्याग्रह ब्रिटिश सरकार के खिलाफ पहला अखिल भारतीय संघर्ष था। हालांकि ये मोटे तौर पर शहरों तक ही सीमित था। अप्रैल 1919 में पूरे देश में जगह जगह जुलूस निकाले गए, हड़ताल का आयोजन किया गया। सरकार ने इन आंदोलन को कुचलने के लिए दमनकारी रास्ता अपनाया और 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के दिन अमृतसर में जनरल डायर द्वारा जलियांवाला बाग में किया गया हत्याकांड इसी दमन का एक हिस्सा था। Rabindranath Tagore renounced his knighthood to express his pain and anger on what had happened at Jallianwala Bagh. इस जनसंहार पर रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी पीड़ा और गुस्सा जताते हुए नाइटहुड की उपाधि को वापस लौटा दिया। During the Rowlatt Satyagraha, Gandhiji put effort to unite Hindus and Muslims to struggle against the British rule, as he was of the viewpoint that India was the land of various religions. रॉलेट सत्याग्रह के दौरान लोगों ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ हिंदुओं और मुसलमानों के बीच गहरी एकता बनाए रखने के लिए प्रयास किया। महात्मा गांधी भी यही चाहते थे। उनकी राय में भारत यहाँ रहने वाले सभी लोगों यानी कि हिंदू, मुसलमानों और अन्य सभी धर्मों का देश है। उनकी गहरी आकांक्षा थी कि हिंदू और मुसलमान किसी भी न्यायपूर्ण उद्देश्य के लिए एक दूसरे का समर्थन करें। देयर वर सम मोर मूवमेंट्स विच वर लेड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 1919 टू 1922. सम ऑफ देम आर as follows: खिलाफत, एगिटेशन एंड नॉन कॉपरेशन मीन्स
खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन। In 1920, the British imposed a harsh treaty on the Turkish Sultan, also known as Khalifa. People became angry at this. The Muslim community of India wanted Khalifa to be allowed to retain control over Muslim sacred places in the Ottoman Empire. Therefore, the leaders of the Khilafat movement, Muhammad Ali and Shaukat Ali, initiated a full-fledged non-cooperation movement. खिलाफत का जो मुद्दा इसी तरह का एक ज्वलंत मुद्दा था, जो कि 1920 में अंग्रेज़ों ने तुर्की के सुल्तान, जिन्हें खलीफा के रूप में खलीफा भी कहा जाता था, पर बहुत सख्त संधि थोप दी थी। जलियांवाला बाग हत्याकांड की तरह इस घटना पर भी भारत के लोगों में भारी गुस्सा था। भारतीय मुसलमान यह भी चाहते थे कि पुराने ऑटोमन साम्राज्य में स्थित पवित्र मुस्लिम स्थानों पर खलीफा का नियंत्रण बना रहना चाहिए। खिलाफत आंदोलन के नेता मोहम्मद अली और शौकत अली अब एक सर्वव्यापी असहयोग आंदोलन शुरू करना चाहते थे। Gandhiji also supported them and urged the Congress to campaign against the Jallianwala Bagh massacre, the Khilafat wrong and demanded स्वराज। गांधी जी ने उनके आह्वान का समर्थन किया और कांग्रेस से आग्रह किया कि वह पंजाब में हुए अत्याचार, जो कि जलियांवाला हत्याकांड था, और खिलाफत के मामले में हुए अत्याचार के विरुद्ध मिलकर अभियान चलाएं और स्वराज की मांग करें। The non-cooperation movement gained strength during 1921 to 22. Thousands of students left government schools and colleges. Many lawyers such as Motilal Nehru, C.R. Das, C. Rajgopalachari and Asaf Ali left their practice. Indians gave up their British titles and boycotted the legislature. Bonfires of foreign clothes were lit. This resulted in the decline of import of foreign cloth between the years 1920 to 1922. 1921 से 1922 के दौरान असहयोग आंदोलन को और ज़्यादा गति मिल गई। हजारों विद्यार्थियों ने सरकारी स्कूल और कॉलेज छोड़ दिए। मोतीलाल नेहरू, C.R. दास, C. राजगोपालाचारी और आसफ अली जैसे बहुत सारे वकीलों ने वकालत छोड़ दिया। अंग्रेज़ों द्वारा दी गई जितनी भी उपाधियां थी उसको वापस लौटा दिया गया और विधानमंडलों का बहिष्कार किया गया। जगह जगह लोगों ने विदेशी कपड़ों की होली जलाई और 1920 से 1922 के बीच विदेशी कपड़ों के आयात में भारी गिरावट आ गई। परंतु यह तो आने वाले तूफान की सिर्फ एक झलक थी। देश के ज़्यादातर हिस्से एक भारी विद्रोह के मुहाने पर आ खड़े थे। Not only the leaders but common people also made attempt to struggle against the British rule in India. What were these initiatives? Let's now read about that. People's initiatives means लोगों की पहलकदमी. In many cases people protested peacefully, but in some they retaliated in their own way, which were not in accordance with Gandhi's. कई जगहों पर लोगों ने ब्रिटिश शासन का अहिंसक विरोध किया, लेकिन कई स्थानों पर विभिन्न वर्गों और समूहों ने गांधी जी के आह्वान के हिसाब से अर्थ निकाले और इस तरह के रास्ते अपनाए जो गांधी जी के विचारों से मेल नहीं खाते थे। सभी जगह लोगों ने अपने आंदोलन को स्थानीय मुद्दों के साथ जोड़कर आगे बढ़ाया। ऐसे कुछ एग्जाम्पल थे। फॉर एग्जाम्पल, इन खेड़ा, गुजरात, पाटीदार peasants organized non-violent campaigns against the huge land tax. In coastal Andhra and interior Tamil Nadu, people protested outside the liquor shops by preventing people from entering. In the Guntur district of Andhra Pradesh, tribals violated the forest law by grazing their cattle in the forests. People believed that Gandhiji will protect them from the forest laws.
and huge amount of taxes. They also believed that Gandhiji Raj would soon be established. खेड़ा गुजरात में पाटीदार किसानों ने अंग्रेजों द्वारा थोप दिए गए भारी लगान के खिलाफ अहिंसक अभियान चलाया। कोस्टल एरिया में आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के भीतरी भागों में शराब की दुकानों की घेराबंदी की गई। घेराबंदी मीन्स लोगों को किसी इमारत या दुकान में जाने से रोकने के लिए किया जाने वाला जो विरोध प्रदर्शन होता है उसको घेराबंदी या फिर पिकेट कहा जाता है। और आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में आदिवासी और गरीब किसानों ने बहुत सारे वन सत्याग्रह किए। इन सत्याग्रहों में कई बार वे चराई शुल्क अदा किए बिना ही भी अपने जानवरों को जंगल में छोड़ देते थे। उनका विरोध इसलिए था क्योंकि औपनिवेशिक सरकार ने जो वन संसाधन थे उन पर उनके अधिकारों को बहुत सीमित कर दिया था। उन्हें यकीन था कि गांधी जी उन पर लगे जो टैक्स हैं उनको कम करा देंगे और वन कानून को ख़त्म कर देंगे। बहुत सारे जो फॉरेस्ट थे गाँवों में किसानों ने स्वराज का ऐलान कर दिया क्योंकि उन्हें उम्मीद थी कि गांधी राज जल्दी ही स्थापित होने वाला है। इन सिंध मीन पाकिस्तान, Muslim traders were supportive towards the Khilafat movement. Similarly, in Bengal, the non-cooperation and Khilafat alliances gave strength to communal unity. In Punjab, Akalis tried to remove corrupt mahantas from the gurudwaras who were supported by the Britishers. Peasants in Assam demanded increase in their wages and left tea plantation as they wanted to support गांधी जी। सिंध जो कि आज के टाइम में पाकिस्तान में है, वहाँ के मुस्लिम व्यापारी और किसान खिलाफत के आह्वान पर बहुत उत्साहित थे। बंगाल में भी खिलाफत असहयोग के गठबंधन ने जबरदस्त सांप्रदायिक एकता को जन्म दिया और राष्ट्रीय आंदोलन को नई ताकत प्रदान की। पंजाब में सिखों के जो अकाली आंदोलन थे उन्होंने अंग्रेजों की सहायता से गुरुओं में जमे बैठे भ्रष्ट महंतों को हटाने के लिए आंदोलन चलाया और यह आंदोलन असहयोग आंदोलन से बहुत ज़्यादा घनिष्ठ रूप से जुड़ा हुआ दिखाई देता था। असम में गांधी महाराज की जय के नारे लगाते हुए चाय बागान मजदूरों ने अपनी तनख्वाह में इजाफे की मांग शुरू कर दी। उन्होंने अंग्रेजी स्वामित्व वाले बागानों की नौकरी छोड़ दी। As Gandhiji was gaining popularity day by day, he was now known as the महात्मा। और उनका कहना था कि गांधी जी भी यही चाहते हैं और उस दौर में बहुत सारे असमिया वैष्णव गीतों में कृष्ण की जगह गांधी राज का यशगान गाया जाने लगा और गांधी जी इस तरीके से दिन प्रतिदिन पॉपुलैरिटी गेन करते जा रहे थे और उनको महात्मा के रूप में लोग जानने लगे थे। The People's Mahatma means जनता के महात्मा। People started believing that Gandhiji was a Mahatma or Masiha who would help them overcome their poverty and misery. Some thought he would fight against jamidars. Some believed he would provide them land. They started crediting him with their own achievements. For example, people who fought against the illegal eviction of tenant from land in United Province felt that it was Gandhiji who had won. Thought Gandhiji's favored class unity at some places. Tribals and peasants took steps which were against Gandhiji's principles. जो अभी हमने एग्जाम्पल्स देखे उसके आधार पर हम देख सकते हैं कि कई जगह के लोग गांधी जी को एक मसीहा की तरह देख रहे थे। वह लोग गांधी जी को एक ऐसा व्यक्ति मानने लगे थे जो उन्हें मुसीबतों और गरीबी से छुटकारा दिला सकता है।
गांधी जी जो वर्गीय टकराव थी उसके बजाय वर्गीय एकता के समर्थक थे, पर किसानों को लगता था कि गांधी जी जमींदारों के खिलाफ उनके संघर्ष में मदद करेंगे। खेतिहर मजदूरों को यकीन था कि गांधी जी उन्हें जमीन दिला देंगे और कई बार आम लोग ने खुद अपनी उपलब्धियों के लिए भी गांधी जी को श्रेय दिया। फॉर एग्जाम्पल, एक शक्तिशाली आंदोलन के बाद जो संयुक्त प्रांत था, जो कि वर्तमान में उत्तर प्रदेश में है स्थित, प्रतापगढ़ के किसानों ने पट्टेदारों को गैर कानूनी बेदखली को रुकवाने में सफलता पा ली, पर उन्हें लगता था कि यह सफलता उन्हें गांधी जी की वजह से मिली है। कई बार गांधी जी का नाम लेकर आदिवासियों और किसानों ने ऐसी कार्रवाइयां भी की थीं जो गांधीवादी आदर्शों के अनुरूप नहीं थी। द हैपनिंग्स ऑफ 1922 टू 29, 1922 से 1929 की घटनाएं। As discussed earlier that Gandhiji's believed in non-violence, so he abruptly called for the non-cooperation movement because a crowd in Chauri Chaura set a police station on fire. महात्मा गांधी हिंसक आंदोलन के विरुद्ध थे। इसी कारण 1922 में जब किसानों की एक भीड़ ने चौरी चौरा पुलिस थाने पर हमला कर उसे जला दिया तो गांधी जी ने अचानक असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। दिस इंसिडेंट टुक प्लेस इन February 1922. 22 policemen were killed on that day. The reason behind this incident was the firing done by the police on the peaceful demonstration by the peasants. और ये जो उस समय 22 पुलिस वाले 1900 मतलब फरवरी में जो 1922 में चौरी चौरा कांड हुआ उसमें उस दिन 22 पुलिस वाले मारे गए थे। किसान इसलिए बेकाबू हो गए थे क्योंकि पुलिस ने उनके शांतिपूर्ण जुलूस पर गोली चला दिया था। After the non-cooperation movement was called off, the leaders such as Chittaranjan Das and Motilal Nehru suggested that the party should fight election to the council and enter them to modify the government policies. Even some social work was carried out in the villages, which led to the extension of support base for the Gandhian movement. This proved to be beneficial in launching the civil disobedience movement in 1930. असहयोग आंदोलन खत्म होने के बाद गांधी जी के अनुयायी ग्रामीण इलाकों में रचनात्मक कार्य शुरू करने पर जोर देने लगे। चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू जैसे अन्य नेताओं की दलील थी कि पार्टी को परिषदीय चुनाव में हिस्सा लेना चाहिए और परिषदों के माध्यम से सरकारी नीतियों को प्रभावित करना चाहिए। 20 के दशक के मध्य गांवों में किए गए व्यापक सामाजिक कार्यों की बदौलत गांधीवादियों को अपना जनाधार फैलाने में काफ़ी मदद मिली और 1930 में शुरू किए गए सविनय अवज्ञा आंदोलन के लिए यह जनाधार बहुत ज़्यादा उपयोगी साबित हुआ। Two important developments were seen in the 1920s. For example, the formation of राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, हिंदू ऑर्गेनाइजेशन एंड द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और हिंदुओं के संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जिसे RSS भी कहते हैं, की स्थापना जो थी 20 के दशक के मध्य दो महत्वपूर्ण घटनाएं थीं। These parties had a different viewpoint about the country India should be, और भारत के भविष्य को लेकर इन पार्टियों की सोच में बहुत गहरा फर्क रहा। The decade ended with the resolution of Congress to fight for पूर्ण स्वराज in 1929 under the presidency of Jawaharlal Nehru, और consequently Independence Day was observed on 26 January 1930 all over India। और जो दो बहुत महत्वपूर्ण घटनाएं थीं भारत के भविष्य को लेकर, जो दो पार्टियां थीं इनके सोच में बहुत गहरा फर्क रहा। अपने अध्यापकों की सहायता से उनके विचारों के बारे में आप ये पता लगा सकते हैं। और उसी दौरान क्रांतिकारी राष्ट्रवादी भगत सिंह भी काफ़ी सक्रिय थे। इस दशक के आखिर
में कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया। जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में 1929 में पारित किए गए इस प्रस्ताव के आधार पर 26 जनवरी 1930 को पूरे देश में स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। सो व्यूअर्स, टुडे इन दिस वीडियो we will study topic about the growth of mass nationalism. I hope that you have understood well what was taught in today's video. Next topic of this chapter of the making of the national movement, 1870s to 1947. Next topic of the Dandi March. We will study our next video, means part 3 of this chapter video. Thank you for watching.